ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। आ पत्ते, आ पीपल, आ बरगद, आ शीशम, आ तुलसी, आ जवैन, आ पुदीना, धनिया ते ये मिलट्स ते आ सब्जियां ते आ फ्रूट्स आही साडे हॉस्पिटल दी दवाई हैगी है। यानी कि 31 गुना किडनी कितने महीने में? 12 जनवरी और दूसरी रिपोर्ट है 18 अप्रैल। आपको भी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था? जी जी बिल्कुल। और खर्चा भी बताया था आपको? जी वो कितना खर्चा बताया था? वो 15 लाख। तो 15 लाख रुपए मतलब वाल बच गए। जी बाल बच गए। ये पत्ते किडनी पेशेंट के नू ऐसो डराया जाता है कि ये नहीं खाने, पालक नहीं खानी। आपको भी बोला गया होगा सर? ये यूरिक एसिड के लिए मुझे मना किया गया। पालक तो मुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, नारियल पानी भी पिलाते हैं। हम यहाँ सारा कुछ वो दे रहे हैं जेड़ा कि किडनी वाले मना करता जाता है। डायरेक्टली मैं फिर यहाँ आ गया। यहाँ अभी मैं 22 को आया हूँ। अभी मेरा क्रिएटिनिन 2 पॉइंट्स घट गया है और जो ये है यूरिन से थोड़ा झाग आता था वो थोड़ा कम हो गया है, तो पॉजिटिव साइन मिल रहा है। 4 दिन जी, सिर्फ 4 दिन जी। और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद कमज़ोर है, आयुर्वेद वीक है। तो आपके सामने तो आयुर्वेद तो कितना शक्तिशाली है ये बताना चाहिए दुनिया को। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ अपनी सासू माँ ठीक की है। इन्हों ही पूछ लो किवें कीती, सारा दस देंगे। किडनी के लिए क्या बताया था? किडनी के लिए जैसे टोटका वगैरह है ना, पत्ते फत्ते सब खाना पीना, डाइट सिस्टम और पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता। 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना 8.5 से 0.99। हम शुगर के पेशेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੀਕੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, अंब खवा के फल खवा के ठीक कर। बिल्कुल। यानी कि डबल किडनी इंप्रूव करके डायलिसिस बंद हो गया। कहने पीजीआई चो एंबुलेंस मोड़ के लेके आए हो तुसी? ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ 29 ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। एलोपैथी वाले इलाज तो कर देते हैं इनकी नज़रों में, लेकिन भविष्य के लिए दोबारा फिर अपना गुलाम बना लेते हैं। एक आंवला 6 किलो संतरे जिन्ना विटामिन सी होता है, 12 अमरूदा जिन्ना विटामिन ए होता है, 3 आमा जिन्ना विटामिन B12 होता है एक आंवले विच। हमारे दोस्त है मंत्री है अनिल विज, जी जी। ठीक है ना जी, वो जहाँ पर आए थे आचार्य जी के, तो वो जाकर बता रहे थे यहाँ का सिस्टम। ਔਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? सर देखो ਆਪਾਂ कहानी सुनने एक कहावत सुनने, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक्चुअल कहावत है एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਔਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਔਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਿਆ, ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਐਨ ਆਂਵਲਾ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ। ਇੱਕ ਆਂਵਲਾ 6 ਕਿਲੋ ਸੰਤਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਅਮਰੂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਆਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਂਵਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਆਂਵਲਾ, ਆ ਪੱਤੇ, ਆ ਪੀਪਲ, ਆ ਬਰਗਦ, ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਆ ਤੁਲਸੀ, ਆ ਜਵੈਨ, ਆ ਪੁਦੀਨਾ, ਧਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਤੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਫਰੂਟਸ, ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मुकेश है, बिहार से, हम भागलपुर से। जो आचार्य जी बोल रहे हैं कि आप घर के डॉक्टर बन गए हैं, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल। क्या हुआ क्या था? देखिए, अभी तो हम अपने यहाँ पापा को लेके आए हैं, वो गोल ब्लैडर का कैंसर है, ठीक है। और आचार्य जी के ही देख रेख में थोड़ा बहुत हम घर से ट्रीटमेंट, बहुत ख़राब स्थिति में थे। हमने यहाँ पे 25 अगस्त को कांटेक्ट किया था, लेकिन जो स्थिति था बोले कि जब तक स्टेबल नहीं हुआ तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। तो फिर हम बहुत इधर उधर कोशिश किए, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर आचार्य जी का ही कुछ टोटका वगैरह करके हम उनको स्टेबल करके अभी लेके आए। इसके पहले 1 साल पहले की बात है, नवंबर में मेरी सासू माँ का जो है ना, वो क्या बोलता है, किडनी, डॉक्टर ने बोला फेल हो गया। तो चूँकि उसमें क्रेटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ था, 8.5 9.5 था। तो आचार्य जी को हम 2014 से ही फॉलो कर रहे थे। तो 2014 से 20 तक में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं था कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तब उस समय अचानक हम इतना सारा डॉक्टर से मिले, इवन कि दिल्ली में भी ऑनलाइन कुछ डॉक्टर से बात किए थे, सबने बोला डायलिसिस। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में जो है ना, मोबाइल पे बहुत रिसर्च मार रहे थे, लास्ट में फिर जो है ना आचार्य जी का वीडियो सब खंगाले। किस्मत से मिल गया? नहीं, किस्मत से नहीं, हम तो रेगुलर 2014-15 से टीवी पे देखते थे, 16 के बाद से फिर मोबाइल पे देखने लगे इनको। तो ऐसा कोई बात किस्मत नहीं था, हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। सब्सक्राइब किया हुआ भी। सासू माँ वाला केस बताओ कि उनका क्रिटिनिन कितना हो गया था? उनका क्रिटिनिन 9.5 9 पॉइंट से कुछ ऊपर था। फेल थी। हाँ। और आपने उसको कैसे ठीक किया? अब जो भी आपका वीडियो वगैरह था उसमें जितना भी टोटका था, ये क्या बताया था आचार्य जी ने? किडनी के लिए क्या बताया था? किडनी के लिए जैसे टोटका वगैरह है ना, पत्ते फत्ते सब खाना पीना, डाइट सिस्टम, और पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, नंगे पाँव घास पे घूमना। नंगे पाँव घास पे घूमना, और करेले और नीम का जो है ना वो, ये सब, और भी बहुत तरह का, भी एग्जैक्टली याद नहीं, अब करेंगे तभी तो। पूरा लिस्ट बना के हम घर में चिपका दिए थे। और सुबह 5 बजे से उनके पूछे लग के, पहले अनुलोम विलोम, फिर नीम के दत्तन से मुंह धुलवाना, फिर कुछ मेडिसिन वगैरह वहाँ से। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना 8.5 से 0.99। 8.5 से 0.9? मतलब किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो गई 1 ही महीने के अंदर। रिपोर्ट भी है इनके पास। इनकी सासू माँ की। और ये मेहनत पता क्योंकि इन्होंने सासू माँ पे, कि अगर सासू माँ ठीक नहीं करते तो बीवी को जाना पड़ता, तो इनको दिक्कत आती। इन्होंने इस चक्कर में सासू माँ पे मेहनत करी और बदले में सासू माँ ठीक हो गई। जी। मतलब बीवी दूर ना हो जाए उसके लिए मेहनत करी थी। साला मेरा छोटा था, 12-14 साल का, अभी शादी भी नहीं हुआ है। अगर उसके घर में और कोई नहीं, ससुर सास साला, और अगर कुछ हो जाता तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब बीवी घर छोड़ के ना जाए सासू माँ के पास रहने के लिए, अपनी सासू माँ घर पे ठीक कर दी इन्होंने। किडनी फेल। घर का भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। घर का बड़ा लड़का है मैं आप सबसे चाहूँगा एक बार इनके लिए हम तालियां बजाएं कि इन्होंने कैसे अपने घर में ही अपनी सासू माँ को ठीक किया। यही मैं चाहता हूँ कि आप जो बात पूछ रहे थे ना कि सारे हिंदुस्तान आप पे करे ठीक हो जावे, वही ये करना चाह रहे थे, वही हो गया। जी बहुत एक पेशेंट होना मैं चाहांगा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆਓ ਆਪ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सर, मेरा नाम शैलेश कुमार तिवारी है, मैं झारखंड से आया हूँ, धनबाद से।
और 2013 से मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली मैं पहले सीएमसी में गया और वहाँ से दवाइयाँ ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्रिएटिनिन बढ़ के वो 10 हो गया। फिर मैं डॉक्टर्स के पास जैसे ही गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या प्लानिंग है, कि मतलब आप ट्रांसप्लांटेशन कराओगे या फिर आप डायलिसिस पे जाओगे। और मैं आचार्य जी के वीडियो पहले से देख रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि नेफ्रो 2-3 से पहले सजेशन ले लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो फिर उन लोगों ने ऐसा बोला तो डायरेक्टली मैं फिर यहाँ आ गया। यहाँ अभी मैं 22 को आया हूँ। अभी मेरा क्रिएटिनिन 2 पॉइंट्स घट गया है और जो ये है यूरिन से थोड़ा झाग आता था वो थोड़ा कम हो गया है। तो पॉजिटिव साइन मिल रहा है। मैं पूछूं जरा? 4 दिन आज, जी सिर्फ 4 दिन। जी। और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद कमज़ोर है, आयुर्वेद वीक है, तो आपके सामने तो आयुर्वेद तो कितना शक्तिशाली है ये बताना चाहिए दुनिया को। जी 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 जी। अच्छा, पहले की क्या कंडीशन थी आपकी? इससे यहाँ जब आप आए थे, इससे आने से पहले की कंडीशन क्या रही होगी? सर मुझे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और मतलब जैसे जो सिम्टम आते हैं वो मुझे आ भी नहीं रहे थे। बीपी बहुत हाई रहता था, कभी 170 180, तो मैंने बहुत दिनों तक उसको मेंटेन करके रखा था 130/90। उसके बाद सडनली वो सूट करने लग गया, ऊपर जाने लग गया। फिर हल्की सी थोड़ी थकान सी महसूस हुई तो लगा कि एक बार रिपोर्ट चेक कराता हूँ। तो जब रिपोर्ट चेक कराया तो देखा क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ सर DTP एक टेस्ट होता है जो मुझे नहीं पता था, वो तो आचार्य जी ने ही बताया और मैंने करवाया यहाँ पे। और पहले तो ये लोग क्रिएटिनिन के ही लेवल पे बताते थे कि आपका किडनी इतना % ख़राब है, इतना ख़राब है। तो क्रिएटिनिन मेरा ऑलरेडी 9.8 चला गया था 10 के अप्रॉक्स। तो थोड़ा घबराया था, इसलिए डायरेक्टली यहाँ आया। तो यहाँ देख रहा हूँ थोड़ा बेनिफिट है मुझे। अच्छा, यहाँ पे क्या बता क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो जो फूड हैबिट है वो चेंज कर दिया गया है। हम लोग जो चावल और गेहूं खाते हैं उनको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। DIP डाइट है जो फॉलो किया जा रहा है, मतलब मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना है अपने वेट के 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग। और फिर अगर मीट डे है तो उसमें सैलड पहले खाना है, फर्स्ट प्लेट वो होना चाहिए। सेकंड जो है वो मिलेट्स की बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। और फिर इवनिंग में वही सैलड खाना है और फिर मिलेट्स की चीज़ें खानी है। तो हम लोग जो गेहूं और चावल खाते थे उसे बंद कर दिया गया। अच्छा, कितने दिन में लगता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, यहाँ से ठीक होके अपने घर जाएंगे, परिवार में खुशी? सर यहाँ तो 7, अभी तो मैंने करवाया है 10 डेज़ का। 10 डेज़ में अगर 2-4 पॉइंट कम होता है तो मैं इसको फॉलो करूँगा, मैं ख़त्म करूँगा, ये सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि यही पैटर्न मुझे फॉलो करना है। पर वो तो कहते हैं, डॉक्टर तक कहते हैं जी कि तुम किडनियाँ अगर ट्रांसप्लांट करा लो तो हल ही है। आपको भी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था? जी जी बिल्कुल। और खर्चा भी बताया था आपको? जी वो कितना खर्चा बताया था? वो 15 लाख। तो 15 लाख रुपए मतलब वाल बच गए। जी बाल बच और गया। दूसरी बात, किडनी लेते भी किसी की आप? किसकी जी, लेते जी। हैं आप? वाइफ की या बहन की या मम्मी दी? किसी किडनी लेते? किडनी ठीक हो सकती है? अच्छा, मेरे सामने है, मैं थोड़ा सबूत दिखा देना सर, आप भी पढ़ के बता दो चैनल पे, क्योंकि ये पेशेंट है। मैं बोलूँगा शायद झूठ पढ़ के बताऊँ। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे? थोड़ा सा ऐसे करके बता दो, थोड़ा जी कैमरे में दिखा के। अडल्ट किडनीज कंसल्टेंसीज ग्रो, नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रो, कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल देमसेल्व्स, मतलब क्या निकला स्टडी इसका? फाइंड्स, मतलब वो किडनी जो कॉन्स्टेंटली है ग्रो करती रहती है बस। और ये अपने आप को रीमॉडल कर remodel लेती करती है। है, और जो ये हम लोग- रिसर्च पेपर मेरा तो नहीं है ना, नहीं, स्टैनफोर्ड का है। स्टैनफोर्ड का है। अच्छा, और एक और पढ़ लेते हैं। जी। ये क्या लिखा हुआ है सर? इधर दिखा दो कैमरे में भी। Israeli US research proves that kidneys are capable of the regeneration. यानी आपके थोड़े नाल भी यही है? अभी तो जैसे चेंज हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि वो रीजनरेट हो रहा है सर। ये सबूत भी तो है ना। ठीक है, रिसर्च आपके, मतलब आप तो प्रैक्टिकल हैं, आपने ये चीज़ हंडाई है अपने शरीर पे, तो आपको लगता है कि रिसर्च ठीक है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसर्च ठीक है। जी जी जी। मैं अब आपको एक पेशेंट का DTP स्कैन भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पेशेंट है, उम्र 24 साल। इनकी किडनी टोटल 0.3 मतलब 1% भी नहीं काम कर रही थी। 0.3 सर, ये टोटल बताओ कितना बनता है इसका? ये देख के बताओ जरा। 0.39 मतलब 0.3, एक भी नहीं, 0.3 काम कर रही थी। उम्र 24 साल, डेट है 12 जनवरी 2022। और ये दूसरी रिपोर्ट बताना कितने % काम कर रही है अब? 9.30। यानी कि जो 0.3 थी वो 9.3 हो गई। यानी कि 31 गुना किडनी कितने महीने में? 12 जनवरी। और दूसरी रिपोर्ट है 18 अप्रैल। ठीक है, ये नाम भी चेक कर लो सर आप। सिर्फ सर 3.5 महीने। 3.5 महीने है। 3.5 महीने में 30 गुना किडनी इंप्रूव होना
आयुर्वेद स्लो लगता है अभी आपको? ये घास पे नंगे घूमने का साइंटिफिक लॉजिक समझ आ रहा है अब आपको? ये हरी सब्जियों का, ये जूस का, ये फ्रूट्स का, ये सैलड की और ये मिलेट्स की पावर समझ आ रही है आपको? ये सब इन सब की वजह से हो रहा है। ये जो आपने अपने हाथ में अभी प्लेट तो ये पड़ी सी प्लेट अपनी हरी पत्तियां दी, ये पत्ते किडनी पेशेंट के नू ऐसो डराया जाता है कि ये नहीं खाने, पालक नहीं खानी। आपको भी बोला गया होगा सर? हाँ, ये यूरिक एसिड के लिए मुझे मना किया गया। पालक तो हम मुझे यहाँ खिलाते हैं, पिलाते हैं, नारियल पानी भी पिलाते हैं। हम यहाँ सारा कुछ वो दे रहे हैं ਜਿਹੜਾ कि किडनी वालों मना करता जाता है। हम शुगर ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, शुगर ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੀਕੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। अंब खवा के फल खवा के ठीक कर दे। बिल्कुल, इनको टमाटर भी मना थे। तो यहाँ पे सब खवा यहाँ तो रेड जूस है, तो फिर उसमें शायद है जी। जी 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 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਛਾਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪ में से ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਮਤਲਬ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਾਂਸ ਤੇ ਕੇ। ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੁੰਮੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮੀਏ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ 29 ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 6ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। 6ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ? ਫਰਕ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ policybazaar.com ਤੋਂ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦੋ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਤੋਂ 5000 ਦਾ ਇੱਕ ਆਰੋਗਯ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SBI ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। SBI ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5000 ਦੀ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ, 100% ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਅੱਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 2000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ 4000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ DTP ਸਕੈਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 48% ਹੈ ਲੈਫਟ, ਇੱਕ 57%। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम उत्तम घोष,
उत्तम घोष अगरतला फ्रॉम त्रिपुरा। मेरा मदर एडमिट है, जी, क्या प्रॉब्लम क्या लेके आए हैं आप? किडनी का प्रॉब्लम था अच्छा, था मतलब अब नहीं है? ना, किडनी का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। अब कितना है, पहले कितना था? पहले आपका इसका हम लोग जब आया था 4.9 है, तो अभी तो आज तो आपका 3.8 है। कितने दिन में? ये 4 दिन काउंट कर लीजिए एक बार फिर। 22 का एडमिट किया। 22 का एडमिट करने से 22, 23, 24, 26 है आज। तो 4 दिन में माँ का ब्लड यूरिया भी आपका 177 था, तो अभी उसका घट के 112 है। नहीं, ऐसा क्या करते हैं, कुछ घोल के पिलाते हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो सिस्टम है आपका। सुबह आपका हमको जुगा में जाना है, वो करना ही है। फिर आपको पैदल इधर घूमना है, फिर बाथटब में बैठना है 2 घंटा, वो बहुत आपका ये है। और आपका दिमाग से निकलना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ, हमारा एलोपैथिक में क्या हो गया ना, हम 14 टेबलेट, मेरा माँ दिल्ली अपोलो डी के अग्रवाल का डॉक्टर है, और नेट में भी डालोगे तो वो 1 नंबर में आता है। अभी चंकी बंडे जैसा फेस है उसका। तो इतना मेडिसिन खाता था ना मेरा माँ, 15-20 मेडिसिन खाता था। और माँ ना बैठे रहता घर में, बैठे ना 1 to 2 खाएगा, और सब आके उसके पीछे शाम को बैठ के उसको बीमार है, उसके दिमाग में डालते बीमार है। अभी उनका बीमारी बहुत कम है, अभी वो चल के इधर आता है। ये थे हम लोग जब दिल्ली से अगरतला से डायरेक्ट फ्लाइट में आया दिल्ली में आके, तो मैं एनटीपीसी में हूँ। मेरा एक दोस्त ने बोला भाई हिम्स से आप जाकर एक बार हिम्स में जाना। तो हम तो इतना बिलीव नहीं करते, हिम्स क्या है, इतना दिन से क्या है भाई। मेरा क्या है ना, मेरा माँ इधर आने से बहुत हुआ। इधर क्या है, आपको दिमाग से निकलना पड़ेगा, हम बीमार है। मैं आचार्य जी को एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा त्रिपुरा में अगरतला में एक सेंटर खुली है, और जितना गवर्नमेंट सपोर्ट है मैं सीएम से भी हम करा दूंगा। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहना कि सारी दुनिया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਮਵਦ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ। ਜੀ ਜੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। नहीं एक्चुअली ऐसे है जी, हमारे को तो ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? महावीर जैन, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अम्बाला कैंट। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? नहीं प्रॉब्लम तो एक्चुअली मेरे बेटे को और डॉटर इन लॉ को थी, तो उन्हीं की प्रॉब्लम तो कुछ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? स्टंट पड़ा था मेरे को। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ते ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੰਟ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦਾ। हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਕੀ ਸਟੰਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? स्टंट वाली तो जी नॉर्मली ये है, हमारे दोस्त हैं जी, बोल दूँ जी, हाँ हाँ कोई गल नहीं। हमारे दोस्त हैं मंत्री अनिल विज, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ठीक है ना जी, वो जहाँ पर आए थे आचार्य जी के, तो वो जाकर बता रहे थे यहाँ का सिस्टम के डेरा बस्सी में बहुत बड़ा अच्छा मंत्री है जी, ਅੱਛਾ होम मिनिस्टर है, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। तो वो मतलब कि बहुत अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा है। ਅੱਛਾ वो खुद भी मेरा ख्याल पहली बार ही आए होंगे जी। ਜੀ ਜੀ। तो उन्होंने जो देखा या कुछ जो बताया तो हमारे साथ भी उन्होंने शेयर किया। तो एक बात फिर मैंने कहा भी मैं उधर डेरा बस्सी जाना चाहना है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? अच्छा जी, हमने एडमिट करवा दिया था जी। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਆ ਸੀ ਬੱਤੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। वो जो था कंसीव नहीं कर सकते थे जी। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। तो वो अभी भी एडमिट ही हैं। और आप अपने लिए क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे ठीक होना है? अब आपको क्या बताया ठीक करने के लिए? स्टंट आचार्य जी ने क्या ना भी थोड़ा स्टंट कटवा देंगे क्या है इन्होंने? नहीं, मेरे को एक्चुअली और प्रॉब्लम हो गई जी, TLC बढ़ गया, उधर कोलेस्ट्रॉल घट गया। जो इनका ट्रीटमेंट हुआ ना स्टंट डलते टाइम जो दवाइयाँ चली उसके साइड इफेक्ट की वजह से इनका TLC बढ़ गए। मतलब एलोपैथी वाले इलाज तो कर देते हैं इनकी नज़रों में, लेकिन भविष्य के लिए दोबारा फिर अपना गुलाम बना लेते हैं। हम आयुर्वेद वाले उसको फ्री करते हैं गुलामी से। ठीक कह रहे हैं आचार्य। तो थोड़ा मेरे को दर्द हुआ जी, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें स्टोन वगैरह आ गया, किडनी में भी आ गया, ब्लैडर में भी आ गया। अच्छा, तो आज मैं तो खैर अपने उसी पर्पज़ के लिए आया था। अच्छा, आप हमारे डॉक्टरों से मिले, कैसा लगा आपको कि आयुर्वेद में इलाज कराना अच्छा है दुनिया के लिए? पूरे देश के लोग आपको तानू देख रहे हैं कि नहीं, कहना चाहोगे? मैं यही कह के आया हूँ जी कि ये बेटा बेटी फ्री हो जाए फिर हम आएंगे। फिर तो दोनों का नंबर लावांगे आप। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। एक DTPS स्कैन और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये उम्र 36 साल है, नाम अनिल है। 7 जनवरी की रिपोर्ट है ਤੁਹਾਡੇ सामने। किडनी टोटल 8% काम कर रही है। देखो 8 ml प्रति मिनट, मतलब ये 8 ml कर रही है खून साफ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 15.5 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
क्या बात। यानी कि डबल किडनी इंप्रूव करके डायलिसिस बंद हो गया। ਇਹ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਨੰਗੇ ਪਾँव ਘਾਸ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 19 ਸਾਡੇ ਹਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਵੱਡੇ ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਹੈ, ਮੇਰਠ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁੜਗਾਂਵ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਠਾਣੇ, ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਸਥ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।